علیکم، میں ہوں کرن بٹ اور میں لائی ہوں آپ کے لیے ویزوں، امیگریشن اور بیرون ملک سفر سے جڑی اہم اپڈیٹس۔ چلیے نظر ڈالتے ہیں آج کی پہلی اپڈیٹ پر۔ اگر آپ عمرہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو سعودی عرب سے آپ کے لیے خوشخبری آ گئی ہے۔ اب آپ کو ایجنٹس کے دفتروں کے چکر لگانے اور ان کے چکروں میں آنے سے آزادی مل گئی ہے۔ عمرہ زائرین کے لیے نسک عمرہ کے نام سے نئی آن لائن سروس متعارف کرا دی گئی ہے۔ اس کے ذریعے آپ ایجنٹ کے بغیر براہ راست عمرہ ویزا حاصل کر سکیں گے۔ آپ خود اپنی سہولت کے مطابق رہائش، ٹرانسپورٹ اور دیگر پیکیجز بھی آن لائن بک کر سکیں گے۔ یہ پلیٹ فارم 7 زبانوں میں دستیاب ہے اور حکومتی نظام کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے زائرین کو آسان، تیز اور شفاف سہولیات فراہم کرے گا۔ نسک عمرہ سعودی ویژن 2030 کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد لاکھوں مسلمانوں کو آرام دہ سہولیات کے ساتھ عمرے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ اب زائرین بغیر کسی مشکل کے اپنی مرضی کا پیکج منتخب کر کے ایک بٹن کے ذریعے مکمل سفر کا انتظام کر سکیں گے۔ پاکستان میں عمرہ ایجنٹوں کے خلاف شکایات عام ہیں کہ وہ جن سہولتوں کا وعدہ کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے۔ ہوٹل 4 سٹار کی جگہ 3 سٹار کا نکل آنا، ہوٹل حرم شریف سے بہت زیادہ دور نکل آنا، فوڈ اور ٹرانسپورٹ ناقص ہونے کی شکایات عام ہیں۔ اس نئی آن لائن سروس سے پاکستانی عمرہ زائرین کی ان تمام مسائل سے جان چھوٹ جائے گی۔ کینیڈا نے ایک بار پھر ہزاروں غیر ملکیوں کو امیگریشن کے لیے بلا لیا۔ تازہ ترین ایکسپریس انٹری ڈرا میں ہیلتھ کیئر اور سوشل سروسز کے شعبوں میں 2500 امیدواروں کو دعوت دی گئی ہے۔ اس ڈرا میں شامل ہونے کے لیے امیدوار کا کم از کم سکور 470 پوائنٹس مقرر کیا گیا تھا۔ یہ اس سال کا دوسرا بڑا ڈرا ہے جس میں خاص طور پر ڈاکٹروں، نرسوں اور سوشل ورکرز کو ترجیح دی گئی۔ کینیڈا اس وقت اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات اور ہیلتھ کیئر سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھر سے ماہرین کو بلا رہا ہے۔ اس میں پاکستانی پروفیشنلز کے لیے بھی زبردست امکانات موجود ہیں۔ اگر آپ کے پاس مطلوبہ تعلیم اور تجربہ ہے تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ آپ کینیڈا جا کر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ نئی زندگی شروع کریں۔ یاد رہے ایکسپریس انٹری کینیڈا کا آن لائن سسٹم ہے جو امیگریشن کے امیدواروں کو ان کی قابلیت اور سکور کی بنیاد پر منتخب کرتا ہے۔ تھائی لینڈ نے غیر ملکی سیاحوں کو کھینچنے کے لیے انوکھا منصوبہ بنایا ہے۔ تھائی لینڈ غیر ملکی سیاحوں کو 2 لاکھ مفت ڈومیسٹک فضائی ٹکٹس دے گا۔ یہ اسکیم ستمبر سے نومبر 2025 تک جاری رہے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آنے والے سیاح صرف بینکاک اور پھوکیٹ تک محدود نہ رہیں بلکہ نئے مقامات کی سیر بھی کریں۔ یہ ٹکٹ صرف غیر ملکیوں کو ملیں گے جو تھائی لینڈ کا انٹرنیشنل ٹکٹ بک کریں گے۔ اگر آپ باہر سے تھائی لینڈ آ رہے ہیں تو آپ کو ایک مفت ریٹرن فلائٹ اندرون ملک ملے گی۔ اس کے ساتھ آپ 20 کلو سامان بھی لے جا سکیں گے۔ یہ سہولت تھائی لینڈ کے اندر سفر کے لیے ہے، باہر جانے کے لیے نہیں۔ حکومت اس کا خرچہ ادا کرے گی اور یہ ٹکٹ 6 مقامی ایئر لائنز پر دستیاب ہوں گے۔ امریکہ نے غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری کی مہم کے تحت 2 ملکوں سے معاہدے کر لیے ہیں۔ ان میں وسطی امریکہ کا ملک ہونڈوراس اور افریقی ملک یوگنڈا شامل ہیں۔ ان معاہدوں کے تحت یوگنڈا ایسے افریقی اور ایشیائی پناہ گزینوں کو قبول کرے گا جو میکسیکو کی سرحد پر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ شرط یہ ہے کہ ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو۔ ہونڈوراس 2 سال کے دوران اسپینش بولنے والے کئی 100 افراد کو واپس لینے پر راضی ہوا ہے۔ ان میں بچوں کے ساتھ آنے والے خاندان بھی شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور اقوام متحدہ کے ماہرین اسے ایک خطرناک رجحان قرار دے رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے نوجوانوں کے لیے بیرون ملک روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا نیا منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ اس کے تحت صوبائی حکام اب براہ راست غیر ملکی سفارت خانوں اور مشن سے رابطے کریں گے۔ ان رابطوں کا مقصد ہنرمند پاکستانیوں کو بیرون ملک ملازمتیں دلانا ہے۔
इस मकसद के लिए स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट को इख्तियार दे दिया गया है कि वो बराह रास्त बैनुल-अक़वामी मार्केटों तक रिसाई हासिल करें। नौजवानों के लिए ज़राअत, सनत और कंस्ट्रक्शन जैसे शोबों में नौकरियां तलाश की जाएंगी। हुक्काम के मुताबिक बेलारूस ने पहले ही पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमतों की पेशकश की है। इस मंसूबे पर अमल दरामद वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद शुरू होगा। उम्मीद है वज़ारतों में बैठी ब्यूरोक्रेसी ऐसे तमाम मंसूबों को रवायती ताख़ीर का शिकार नहीं करेगी। ऐसे तमाम मंसूबों को फास्ट ट्रैक पर लाने की अशद जरूरत है। बहरीन में माजूर वर्कर्स के लिए एक इनकलाबी तजवीज़ पार्लियामेंट में पेश कर दी गई है। बहरीनी हुकूमत माजूर अफराद के लिए फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट स्कीम लाने की कोशिश कर रही है। इस स्कीम का मकसद बहरीन की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में माजूर अफराद की नौकरियों को यकीनी बनाना है। स्कीम के तहत माजूर अफराद को पहले 2 साल की तनख्वाह हुकूमत अदा करेगी। इसके बाद भी इनकी तनख्वाह का 75% हिस्सा हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा। ये इकदाम औजरों की तरफ से माजूर अफराद को भी भर्ती करने में हिचकिचाहट खत्म करने के लिए किया जा रहा है। स्कीम में मार्केट जरूरियात के मुताबिक माजूर अफराद की ट्रेनिंग को भी शामिल किया गया है। इस स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, सिविल सर्विसेज ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड तमकीन और लेबर फंड मिलकर काम करेंगे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने AI इमिग्रेशन कॉरिडोर मुतारिफ करा दिया है। अब दुबई एयरपोर्ट पर पासपोर्ट दिखाने या कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं। मुसाफिर सिर्फ चंद सेकंड में अपने चेहरे की शनाख्त के जरिए इमिग्रेशन क्लियर करा सकते हैं। इस जदीद कॉरिडोर में एक साथ 10 मुसाफिर गुजर सकते हैं और सिर्फ 14 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम मुस्तकबिल के इस सफर की झलक है जहां पासपोर्ट की जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी और सिर्फ आपका चेहरा ही आपकी शनाख्त होगा। अगर कोई मसला हो तो निज़ाम फौरन सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता है। ये निज़ाम फिलहाल टर्मिनल 3 के फास्ट और बिजनेस क्लास लाउंज में दस्तयाब है। इसे जल्द आम मुसाफिरों के लिए भी खोल दिया जाएगा। दुबई एयरपोर्ट हर साल 8 करोड़ से ज्यादा मुसाफिरों को सहूलत फराहम करता है। यूके ने गैर कानूनी इराकियों को वापस भेजने का मुआहदा कर लिया है। ये इकदाम छोटी कश्तियों के जरिए मुल्क में दाखिल होने वाले तारिकीन वतन को रोकने की हिकमत अमली का हिस्सा है। इस मुआहदे के बाद ऐसे इराकी शहरी जो बगैर इजाजत बरतानिया पहुंचते हैं, इन्हें तेजी से वापस भेजा जाएगा। लेबर पार्टी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद बरतानिया ने अल्बानिया, वियतनाम और फ्रांस समेत कई ममालिक के साथ इसी नौयत के मुआहदे किए हैं। हाल ही में फ्रांस के साथ 1 in 1 out स्कीम भी शुरू की गई है। इसके तहत बरतानिया पहुंचने वाले गैर कानूनी तारिकीन को वापस भेजा जाएगा। इसके बदले फ्रांस में मुकीम उन पनाहगुज़ीनों को दाखिले की इजाजत दी जाएगी जिनका बरतानिया में हकीकी खानदानी ताल्लुक हो। न्यूजीलैंड ने गैर मुल्की स्टूडेंट्स के लिए वीजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का ऐलान कर दिया है। 18 सितंबर से स्टूडेंट वीजा के लिए कागजी दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। तमाम दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इमिग्रेशन ऑनलाइन के जरिए दी जा सकेंगी। इसके साथ ही नवंबर से गैर मुल्की स्टूडेंट्स के लिए काम के औकात 20 घंटे से बढ़ाकर 25 घंटे कर दिए गए हैं। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट वीजा, फी पेइंग स्टूडेंट वीजा, एक्सचेंज प्रोग्राम वीजा समेत तमाम कैटेगरीज के लिए नया ऑनलाइन फॉर्म इस्तेमाल होगा। जो स्टूडेंट्स पुराने सिस्टम पर दरख्वास्तें दे चुके हैं, इनकी एप्लीकेशंस प्रोसेस की जाएंगी। जो ड्राफ्ट दरख्वास्तें मुकम्मल नहीं हुई, इन्हें 17 सितंबर तक जमा कराना होगा, वरना वो डिलीट हो जाएंगी। यूएई ने 8 बड़े ममालिक के शहरियों के लिए अहम सहूलत का ऐलान कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जापान, सिंगापुर, बरतानिया और अमेरिका के शहरी बगैर एडवांस वीजे के 90 दिन तक यूएई में क़याम कर सकेंगे। इस पॉलिसी के तहत इन्हें वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। ये वीजा 6 माह की मुद्दत में 90 दिन तक रिहाइश की इजाजत देगा। इस सहूलत से दुबई, अबूधाबी और शारजा जैसे शहरों में ज्यादा वक्त गुजारना मुमकिन हो जाएगा। इससे पहले ज्यादातर ममालिक के शहरी सिर्फ 30 दिन तक क़याम कर सकते थे। अब नई पॉलिसी के जरिए यूएई वीजा कानून को मजीद आसान कर दिया गया है। गैर कानूनी तारिकीन वतन से परेशान यूके हुकूमत ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग कर लिया।
मजीद 2 स्मगलर्स को गैर कानूनी दाखिले और धोखा दही के इल्जाम में मुजरिम करार दे दिया गया। एक कुवैती और एक तुर्क शहरी फ्रांसीसी एयरपोर्ट से जाली पासपोर्ट के जरिए 6 तारिकीन को यूके भेजने में मुलविस पाए गए। हर पनाहगुज़ीर ने तकरीबन 8,000 पाउंड अदा किए थे ताकि वो बरतानिया पहुंचकर खुद को दस्तावेजात के बगैर पनाह का तलबगार जाहिर कर सके। तीसरे मुलजिम के केस में जूरी किसी फैसले पर न पहुंच सकी। हुक्काम के मुताबिक स्मगलर्स ने इस अमल को महज पैसा बनाने का जरिया बना रखा था। यूरोप में बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी करने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। आयरलैंड की हुकूमत ने साल 2026 के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। ये मुकम्मल तौर पर फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, जिनमें ट्यूशन फीस, रिहाइश और माहाना वजीफा शामिल है। दुनिया भर के स्टूडेंट्स आयरलैंड की मारूफ यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप पर आला तालीम हासिल कर सकते हैं। आयरलैंड यूरोप में तेजी से उभरता हुआ तालीमी मरकज बन रहा है, जो आलमी मेयार की तालीम, तहकीक के बेहतर मौके और एक शानदार सकाफती तजर्बा फराहम करता है। अगर आप बैरून मुल्क आला तालीम का ख्वाब रखते हैं तो ये मौका ज़ाया न करें। यूके की अदालत ने लंदन के करीबी इलाके एपिंग के बेल होटल से पनाहगुज़ीनों को हटाने का हुक्म दे दिया। यहाँ हालिया हफ्तों में सख्त एहतजाज और झड़पें देखने में आई थीं। मुकामी हुक्काम ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि होटल में पनाहगुज़ीनों की रिहाइश बदनामी का बाइस बनी है। अदालत ने 12 सितंबर तक पनाहगुज़ीनों को मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। एहतजाज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया था जब एक पनाहगुज़ीन पर 14 साला बच्ची से जिनसी ज़्यादती का इल्जाम लगा। इन मुजाहिरों में मुकामी अफराद और दाएं बाजू के ग्रुप शामिल थे, जो बाद में पुरतशद्दुद हो गए। पुलिस ने कम से कम 9 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। इस तादिद नस्ल परस्ती ग्रुपों ने भी होटल के बाहर जवाबी एहतजाज किया। हुक्काम के मुताबिक होटलों को पनाहगुज़ीनों के लिए इस्तेमाल करने की हुकूमती पॉलिसी पहले ही अवामी नाराजगी और तशवीश का बाइस बनी हुई है। अबू धाबी तेजी से गैर मुल्की जोड़ों की पसंदीदा मंजिल बन रहा है। 2025 के पहले 6 माह में गैर मुल्की सयाहों और मुकीम अफराद ने 10,000 से ज्यादा सिविल मैरिज की दरख्वास्तें जमा कराई। ये गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20% ज्यादा हैं। अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट के मुताबिक 2021 में सिविल मैरिज कानून आने के बाद से अब तक 43,000 से ज्यादा शादियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। सिविल फैमिली कोर्ट की मकबूलियत की बड़ी वजह ये है कि ये मशरिक वस्ता के पहली अदालत है जो गैर मुल्कियों के लिए अलहदा फैमिली और शादी की खिदमात फराहम करती है। यहाँ फौरी सिविल तलाक, मुश्तरका बच्चों की कफालत, मसावी विरासत और वसीहत की रजिस्ट्रेशन जैसे तमाम मामलात भी हल किए जाते हैं। सबसे बड़ी सहूलत ये है कि तमाम खिदमात ऑनलाइन दस्तयाब हैं और इसके लिए यूएई में रिहाइश जरूरी नहीं। फ्रांस के शुमाली साहली इलाकों में पहुंचने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन अफराद की मुश्किलात कम ना हो सकी। गुज़िश्ता दिनों में 2 अफराद की लाशें मुख्तलिफ मकामात से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक एक महाजिर की लाश लोन पलाश के करीब कैंप में लटकी हुई मिली। इसे इब्तदाई तहकीकात में खुदकुशी करार दिया गया। इसकी शनाख्त ताहाल मालूम नहीं हो सकी। इसी तरह एक और 22 साला नौजवान महाजिर की लाश डनकर्क के करीब नहर से मिली। ये पानी में नहाते हुए गिरकर डूब गया था। मकामी फलाही तंजीमों ने कहा कि कैंपों में पानी और बुनियादी सहूलियात की कमी के बाइस महाजरीन को नहरों का सहारा लेना पड़ता है। ये सूरत हाल पाकिस्तानी शहरियों के लिए भी सबक है कि गैर कानूनी रास्तों से यूरोप जाने की कोशिश अक्सर जिंदगी के नुकसान पर खत्म होती है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने प्यारों को खतरनाक रास्तों के हवाले ना करें। इन्हें बाकायदा वीजा दिलवा कर बैरून मुल्क भेजें। इनकी जिंदगी से कीमती कुछ भी नहीं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नई अपडेट्स के साथ बुध की शाम फिर से हाजिर होंगी। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज की अपडेट्स कैसी लगी। तब तक के लिए किरण भट्ट को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।